Good morning, students. Today we will discuss lesson 5 from Flamingo book for class 12. Lesson name is Indigo, written by Louis Fisher. Here in this lesson there are some characters which are very important and they can be in your examination for 2 marks or maybe for 6 marks. So please listen them carefully. Gandhiji, you know very well, Gandhi is the main personality among our freedom fighters. He is mentioned here. Rajkumar Shukla, he was a peasant from Champaran. Edward Gate, he was the commissioner. Rajendra Prasad, he was the president of Indian National Congress as well as first president of Free India. C.F. Andrews, he was a follower or disciple of Gandhi, whose help the lawyers want to say, but Gandhi denied them. J.B. Kriplani, he was also a friend of Gandhi and follower of him, who was the head of Indian National Congress, president of Indian National Congress at the time of our freedom. Professor Mulkani, he is the personality with whom Gandhi stayed at his home while he was traveling to Champaran. So message of the lesson, हमारे को इस लेसन के अंदर कुछ मैसेज मिलेंगे. गुड लीडरशिप कैन टेक यू टू द अपेक्स, टू द हाइट ऑफ योर ड्रीम्स. कोई भी अच्छा नेता होगा तो अच्छे काम करेगा, अच्छे डिसीजन लेगा और वही आपको हाइट पे ले जा सकता है, आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है. एज इन दिस लेसन गांधी हैज कंप्लीटेड हिज मिशन ऑफ चंपारण एपिसोड very skillfully. Illiteracy is a cause or mother of all the problems. अनपढ़ता सब बीमारियों की जड़ है, सबसे बड़ा अभिशाप है. यहाँ पे हमारे को बताया गया है कि जो चंपारण के फार्मर्स थे, पेजेंट्स थे, they were illiterate, they do not know the rule and regulation. That's why they were easily exploited by the British planters. Self-reliance, आत्मनिर्भरता. We should not depend on others. We should not seek help in others. We should be self-dependent. Until you will be self-reliant or self-dependent, till then success can't be gained. Your urge can be oppressed but not extinguished. आपके अंदर की किसी भी काम करने की जो इच्छा है उसको दबाया जा सकता है लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता. जैसे चंपारण के फार्मर्स थे, उनको अंग्रेजों ने अपनी पावर के बलबूते के ऊपर दबा रखा था. They were not capable to speak against those people. But when Gandhiji went there and when he enlightened their power, they were ready to oppose the Britishers, and the Britishers were helpless when they were there in thousands. There should not be saturation in our life. हमारी जिंदगी के अंदर saturation point नहीं आना चाहिए. Wherever you feel that there is saturation means you stop your development. जैसे गांधी जी ने अगर चंपारण एपिसोड के लिए गए थे, वहां पे जाके वो सोचते कि किसानों की प्रॉब्लम को मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है, तो उसके आगे का जो एक और पॉइंट दिया गया है कि गांधी जी ने वहां पे सामाजिक और आर्थिक हितों के ऊपर भी काम किया, तो वो इस काम को अंजाम नहीं दे पाते. या कोई भी आप अपनी जिंदगी में देख सकते हो, आपने अगर एक टारगेट डिसाइड किया, उसको आपने गेन कर लिया, उसके बाद आप रुक गए, सोचा मैंने कर लिया काम को, तो वहां पे आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते. आगे बढ़ना है तो आपने अपने अंदर गैप रखना होगा कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए. अनटचेबिलिटी, इसको भी हल्का सा टच किया गया है कि एट द टाइम इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंट्री, अनटचेबिलिटी वाज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी. समाज के अंदर अछूतता भी प्रचलित थे. जब गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ उसके घर पे गए, किसके घर पे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे, जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट बने और इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट थे. तो उस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स ने गांधी जी को ये सोच लिया था कि शायद ये भी एक पेजेंट है राजकुमार शुक्ला की तरह. जैसे राजकुमार शुक्ला हमेशा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास हेल्प मांगने के लिए आता था. ही केम टू हिम टू सीक हेल्प फॉर द पुअर पेजेंट्स. In the same way, they consider that Gandhi is his companion, his friend. That's why they let Gandhi to sit down on earth, not on the bed or
काउच, खाट के ऊपर या चारपाई पे नहीं बैठने दिया। और सबसे बड़ी बात अनटचेबिलिटी की कब सामने आई? व्हेन गांधी वांटेड टू टेक वाटर फ्रॉम द वेल एंड दे डू नॉट लेट गांधी टू take water from the well whether some drops may fall and can contaminate the whole source। कि कहीं जब गांधी पानी निकालें उस समय पे कुछ एक पानी की बूंदे वापस गिर जाएं और वो पूरे के पूरे वेल को प्रदूषित ना कर दें, तो ये अनटचेबिलिटी को प्रूव करने वाला पॉइंट है। लेसन, अब हम लेसन को देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। फिशर्स फर्स्ट मीटिंग विद गांधी। अब इस लेसन के अंदर, ये लेसन लुईस फिशर के द्वारा लिखा गया है, और जब लुईस फिशर के मन में इच्छा जगी कि मैं गांधी के बारे में कुछ लिखूं, तो वो गांधी जी के पास आया और उनकी मुलाकात हुई। और मुलाकात के दौरान उन्होंने गांधी जी से पूछा कि आपने इस काम को अंजाम कैसे दिया। तो गांधी जी अब उसको याद करते हुए बताते हैं उनकी पहली मीटिंग के दौरान, क्योंकि अब किसी व्यक्ति के बारे में जब हमें कुछ लिखना हो तो पहले उसके बारे में जानना अति आवश्यक होता है, जैसा कि लुईस फिशर ने किया। या तो हम अपने बारे में लिख सकते हैं क्योंकि हमें सब कुछ पता है, दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखना है तो पहले पूरी जानकारी हमारे को लेनी पड़ेगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जुटानी पड़ेगी। इसीलिए वहां पे लुईस फिशर पहुंचे और गांधी से पूछा कि आपने इस काम को अंजाम कैसे दिया, कौन से काम को, कि कैसे उनके मन में एक इच्छा जगी कि वो अंग्रेजों को भारत से एक्सपेल करें, निकालें और भारत को आजादी दिलवाएं। तो अब गांधी याद करता है और उसको बताता है कि मैं अभी आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। इसकी शुरुआत कैसे हुई कि मैं लखनऊ अधिवेशन के अंदर गया हुआ था और उस टाइम पे राजकुमार शुक्ला नाम का एक व्यक्ति, एक किसान, एक पेजेंट मेरे पास आया उस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर। एनुअल कन्वेंशन जो वहां पे था, अधिवेशन था 1916 में, और वो वहां पे आके गांधी के सामने एक रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वहां पे 2301 डेलीगेट्स और कुछ और अलग अलग व्यक्ति आए थे। डेलीगेट्स होता है प्रतिनिधि, जो किसी पर्टिकुलर एरिया की प्रॉब्लम किसी के सामने रखते हैं और उनका सॉल्यूशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे जो डेलीगेट्स आए हुए थे सब डिस्कस कर रहे थे अपने पर्टिकुलर एरिया की, और राजकुमार शुक्ला जब वहां पे गए होंगे तो उन्होंने किसी व्यक्ति को बताया और उस व्यक्ति ने कहा कि भाई हमारे तो बस की बात है नहीं, लेकिन गांधी नाम का एक व्यक्ति है जो आपके इस काम में आपकी हेल्प कर सकता है। तो गांधी जी वहां पे गए और उन्होंने बताया कि श्रीमान मैं चंपारण से बिलोंग करता हूं, और चंपारण के अंदर शेयर क्रॉपिंग मतलब जैसे हम बटाईदारी कहते हैं, किसी की जमीन को हम कुछ पैसे देके पट्टे पे ले लेते हैं, उस पे खेती करते हैं, और वो खेती जो है उसमें हमारा नुकसान होगा, फायदा होगा, हम जिम्मेवार हैं। लेकिन यहाँ पे जो शेयर क्रॉपिंग थी वो थोड़ी सी दूसरे ढंग की थी। जो इंडियन पेजेंट्स थे, भारतीय किसान थे, उनको उसके ऊपर इंडिगो का मतलब आपको यहाँ से देख सकते हैं, टाइटल से पता चल जाएगा, नील की खेती होती थी। जैसे हम धान की खेती, गेहूं की खेती करते हैं, उसी प्रकार नील की भी खेती की जाती थी, जो हम कपड़ों में देते हैं, डाई का काम करता है। कि वहां पे शेयर क्रॉपिंग की जाती है, जिसके अधीन ब्रिटिश प्लांटर्स उस जमीन के मुखिया हैं, और वहां पे हम टेनेंट हैं, किराएदार हैं, मतलब पैसा या कुछ और चीजें देके उस जमीन पे हम खेती कर पाते हैं। तो गांधी जी से कहा वो जो अंग्रेज अधिकारी हैं, ब्रिटिश प्लांटर्स हैं, वो हमारे को एक्सप्लॉइट करते हैं और जिस वजह से हम काफी दुखी हैं। प्लीज आप वहां पे आइए, विजिट कीजिए और उस समस्या को समझिए। आप देख सकते हैं कि किस हद तक वो हमारा हरासमेंट करते, टॉर्चर करते हैं। तो गांधी ने कहा श्रीमान मैं मजबूर हूं, आई एम कंपेल्ड बिकॉज आई हैव अर्लियर अपॉइंटमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग हिस्सों में मैंने अपने अपॉइंटमेंट दे रखी हैं, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। तो राजकुमार शुक्ला वहां पे एडामेंट था, अडिग था, और उसने अपनी बात को बताना था। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सीख सकते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में कोई हमारे को रिक्वायरमेंट और हम किसी व्यक्ति को कहें और वो पहली बार मना कर दे तो हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें लगातार एफर्ट करने चाहिए जैसे राजकुमार शुक्ला ने किए, क्योंकि समस्या का हल तभी निकल सकता है जब कोई पावरफुल व्यक्ति हमारे साथ आता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है पावर का। यहाँ पे पावर का कॉम्बिनेशन क्या दिखेगा, राजकुमार शुक्ला का रेजोल्यूशन, दृढ़ निश्चय, और गांधी की जो एडुकेशन थी, शिक्षा थी, नॉलेज ऑफ रूल्स, लॉ एंड रेगुलेशन, कानून की शिक्षा, दोनों का अमलकामेशन होके, कॉम्बिनेशन होके उन्होंने उनको अंग्रेजों को डिफीट किया था।
तो उन्होंने बताया कि मैंने अलग अलग हिस्सों में अपॉइंटमेंट दे रखी है, कानपुर वगैरह जो भी है, और राजकुमार शुक्ला एडमेंट होने के नाते गांधी के साथ साथ हर जगह पे गया। और आखिरकार गांधी जब अपने आश्रम में आ गए, उस समय पे राजकुमार शुक्ला ने गांधी से कहा कि अगर आपका काम कंप्लीट हो गया हो तो आप मुझे अब तो एक डेट बता दें कब आप मेरे यहाँ पे चंपारण में आएंगे। अब गांधी ने उसको कहा कि मैं सच एंड सच डेट पे इस तारीख को कोलकाता में आऊंगा, मेरी वहां पे अपॉइंटमेंट है और कोलकाता से आगे आप मुझे ले जा सकते हैं। तब वहां पे राजकुमार शुक्ला गांधी का वेट कर रहा था काफी गहन इच्छा के साथ, और उसके मन में बहुत सारे सवाल जवाब अपने आप हिलोरे ले रहे थे कि कब गांधी जी आएंगे और कब वहां पे वो हमारे साथ जाके उस समस्या को निजात हम किसानों को दिलवाएंगे। तो गांधी जी की विजय टू चंपारण, जब वो वहां गए, वहां से कोलकाता से राजकुमार शुक्ला उनको लेके जाता है, तो उन्होंने ट्रेन में जाते हैं और ट्रेन में जाते हुए गांधी जी ने सोचा मैं सीधा इसके साथ चंपारण जाऊंगा तो मेरे को कंप्लीट नॉलेज नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। इसलिए गांधी जी ने अलग अलग मुजफ्फरपुर नामक जगह से उसके बारे में जानकारी जुटानी चाहिए। जैसे हमारे गांव अलग अलग एरिया के अंदर आते हैं और गांव की जमीन से संबंधित या और समस्याओं से संबंधित अगर जानकारी लेनी है तो जैसे हमारी तहसील होती है, तहसीलदार के पास सारी समस्याएं रिकॉर्ड होती हैं, सब चीजों का रिकॉर्ड होता है। तो इसी प्रकार गांधी जी ने सोचा कि मैं रास्ते में मुजफ्फरपुर रुक जाता हूँ, और जब वो वहां पे जा रहे तो वो न्यूज फैल गई और रास्ते में गांधी जी ने अपने दोस्तों को फोन किया, किन किन को उनको मैसेज भेज दिया। उस टाइम पे सॉरी भाई फोन की तो फैसिलिटी नहीं थी, मैसेज दिया कि भाई मैं आ रहा हूँ। किस किस को? प्रोफेसर मुल्कानी और जेबी कृपलानी को। जेबी कृपलानी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ स्टेशन पे उनका वेट कर रहे थे। जेबी कृपलानी ऐसे व्यक्ति आपको बताया जब भारत को आजादी मिली उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख थे, प्रेसिडेंट थे, और बाद में इन्हीं की वाइफ सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत के अंदर पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री होने का उनको सौभाग्य मिला है। तो उन्होंने भी इस काम को अंजाम दिया जो उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने सर्व किया है। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ उनका वेलकम करने के लिए थे। बाद में गांधी जी प्रोफेसर मुल्कानी के यहाँ पे रुके, जो और उस टाइम पे होम रूल के जो लीडर्स होते थे उनको अपने घर पे हार वार करना, मीन्स शरण देना, रिफ्यूज देना काफी डिफिकल्ट जॉब होती थी, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा डर बिठा रखा था और उस डर से फ्री होना काफी मुश्किल का काम था। ऊपर से उनके ऊपर देशद्रोह, ट्रेटर का वो मुकदमा डाल देते थे कि आपने हमारे खिलाफ किसी व्यक्ति को अपने घर में जगह दी है, और उनको नौकरी से भी हटाया जा सकता था। लेकिन प्रोफेसर मुल्कानी ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया और गांधी जी को अपने घर रखा। वहां पे कुछ जानकारी जुटाने के बाद गांधी जी आगे गए और गांधी जी की द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड हिज मिशन, वो खबर जंगल की आग की तरह वहां पे फैल गई उस एरिया के अंदर। और कुछ किसान अपने हीरो से मिलने के लिए कि कौन आया हम देखे तो वो हमारे लिए क्या काम कर सकता है, उससे मिलने के लिए चल दिए। जो जो उनके पास संसाधन थे, या पैदल होंगे या अपने अपने व्हीकल्स पे होंगे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स ब्रीफ टू हिम, और मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को बुलाया गया। वहां पे शायद गांधी की मीटिंग नहीं हो पाई होगी। राजकुमार शुक्ला जब उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे लेके गए थे तो उसके बाद मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को भी गांधी ने बुलाया और उन्होंने उनको बताया कि हम कैसे इनका केस लड़ते हैं और उनकी फीस का कितना वो स्ट्रक्चर था, कितनी वो फीस लेते हैं। तो इसके बाद गांधी ने अपना सेल्फ एनालिसिस किया और उसके बाद वो इस ओपिनियन पे पहुंचे कि उन्होंने उन लॉयर्स को बहुत ज्यादा डांटा, फटकारा, धमकाया, ये कहा कि आप इन गरीब किसानों से इतनी महंगी फीस लेंगे तो ये किसान कैसे आपके पास केस लड़वाने के लिए आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा ये किसान जो इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इन लोगों को कोर्ट में ले जाना कोई फायदे का सौदा नहीं है। सबसे पहले हमने इस दबे हुए किसान के मन से डर निकालना होगा। वो पहली हमारे लिए एक प्रेफरेंस होनी चाहिए, वरीयता होनी चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो वहां पे जब उन्होंने ये कहा तो उसी टाइम पे जो इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग थी, अंग्रेज अधिकारियों ने, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, वो भारतीयों से कहते थे आप
320 या 15% हम 3/20 करेंगे तो वो हमेशा कितना ही आएगा इंटू 100 करके 5 3 15 कि 15% लैंड के ऊपर आपको इंडिगो की क्रॉपिंग करनी होगी और वो कंप्लीट इंडिगो क्रॉप आपने हमारे को देनी होगी इन द फॉर्म ऑफ रेंट। और उस टाइम पे उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी फॉरेन के अंदर, विदेशों के अंदर, जिस वजह से ब्रिटिश प्लांटर एक अच्छा बेनिफिट वहां से ले रहे थे, उनकी अच्छी इनकम हो रही थी। लेकिन आवश्यकता विस्तार की जर्नी है और लोगों ने सोचा कि इतना महंगा हम सामान कैसे ले। उसी टाइम पे जर्मनी के अंदर सिंथेटिक इंडिगो बनाया गया, मतलब आर्टिफिशियल, और उसकी कीमत काफी कम थी, जिस वजह से उन लोगों ने इन अंग्रेज अधिकारियों को जो ऑर्डर देते थे कि हमारे को इतना इंडिगो चाहिए, वो बंद कर दिया। और इन्होंने सोचा अब तो हमारा काम बंद हो गया, हमारी इनकम कैसे होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो भारतीय किसान थे, इनोसेंट थे, भोले भाले थे, उनको बरगलाया, बेवकूफ बनाया और उनको कहा अगर आप इस चीज से अपने आप को फ्री करवाना चाहते हैं तो आप हमारे को कंपनसेशन के रूप में, हर्जाने के रूप में कुछ पैसा जमा करवा दीजिए। तो भारतीय किसानों के लिए, इंडियन पेजेंट्स के लिए जो इंडिगो क्रॉपिंग थी दैट वाज इरेक्शन, मतलब बहुत ज्यादा इरिटेट करने वाली थी, दुखदाई थी। इसलिए अगर मान लीजिए आप किसी चीज से काफी दुखी हैं और मैं आपसे कहूं इसके बदले में आप इस चीज से फ्री हो सकते हैं, तो आप सोचोगे एक बार ये चीज देखे मैं ताउम्र अपने आप को इससे फ्री कर सकता हूं। इसलिए भारतीय किसानों ने, जो मासूम थे, उन्होंने पैसे दे दिए, और जो पैसे नहीं दे रहे थे उन लोगों के लिए उन ब्रिटिश प्लांटर्स ने ठग हायर कर लिए, गुंडे ले लिए, और वो गुंडे उनको जाके पिटाई करते हैं और उनसे पैसा वसूलते हैं। जैसे आप आज का अर्जुन फिल्म के अंदर देख सकते हैं कि कैसे गांव वालों से अमरीश पुरी जमीन लूटने के लिए उनको मार के उनके अंगूठे के निशान ले लेता है। इसी प्रकार उनको उन्होंने डराना धमकाना शुरू किया। लेकिन उसी समय तक वहां पे खबर पहुंच गई कि अंग्रेज अधिकारी ऐसे ही फ्री करने वाले नहीं थे, क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया, इसकी डिमांड है नहीं, ये तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए जिन किसानों ने पैसे दिए थे अब वो भी कहते हैं हमारा पैसा वापिस दो। इसी पॉइंट पे जब लड़ाई वहां पे यहाँ पे आ चुकी थी, उस पॉइंट पे गांधी जी वहां पे चंपारण में पहुंचते हैं, उनका अराइवल होता है, एडवेंट होता है। तो अब गांधी जी ने सोचा कि भाई कानून जो है वो सबूत के हिसाब से काम करेगा, इसलिए उन्होंने वहां पे सबूत जुटाने शुरू किए। वो सेक्रेटरी ऑफ प्लांट, जो फार्मर्स थे, प्लांटर्स थे, उनके पास गया, कमिश्नर ऑफ तिरहुत के पास गया और मोतिहारी के अंदर गया, जो उस टाइम पे चंपारण की राजधानी थी, जहां से उसको सबूत मिले। तो जो सेक्रेटरी था उसने गांधी जी को कहा कि श्रीमान, हम आपको कोई भी जानकारी, इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि आप आउटसाइडर हैं। उनके अकॉर्डिंग गांधी जो गुजरात का था और इधर बिहार के अंदर आया हुआ था, तो उसको जानकारी देना उनके अनुसार एक बाहरी को उचित नहीं था। लेकिन गांधी ने कहा मुझे एक्सटर्नल, बाहरी कैसे कह सकते हैं, मैं तो भारत का रहने वाला हूं, मेरे देश में मेरे को आप बाहरी कैसे कहेंगे। फिर जब यहां से उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो उसके बाद वो कमिश्नर के पास गया, तिरहुत डिवीजन का जो था, कि मुझे कुछ जानकारी चाहिए। और तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर ने उनको जानकारी देना तो दूर, डराना शुरू कर दिया। जैसे आप सिंघम फिल्म के अंदर देखते हैं, जब वो उसके गुंडे के खिलाफ, प्रकाश राज के खिलाफ FIR लॉन्च करता है तो वो आके डराता है उसको। तो इसी प्रकार उसने गांधी को कहा तेरे लिए भलाई की बात ये होगी तू चुपचाप यहाँ से चला जा। लेकिन गांधी एडामेंट था, अडिग था, ये कहा ऐसे मैं जाने वाला नहीं हूँ और मैं जानकारी जुटाऊंगा। फिर मोतिहारी जो वहां की राजधानी थी वहां पे वो पहुंचे और उन्होंने कुछ जानकारी जुटाई। वहीं पे एक घर को अपने लिए ऑफिस का काम बना लिया, ऑफिस बना लिया, और वहां पे उनको एक जानकारी मिली कि पास के गांव के अंदर एक पेजेंट को मालट्रीट किया गया है, उसके साथ मिसबिहेव किया गया है। तो इस बात से गांधी काफी आहत हुए, दुखी हुए, और उससे मिलने के लिए, उसका हालचाल जानने के लिए गांधी जी वहां पे जाने का उन्होंने डिसीजन लिया कि कल मैं जाऊंगा। और गांधी जी एक हाथी की पीठ पे बैठ के उनको मिलने के लिए अगले दिन जैसे ही निकले, ये खबर अंग्रेज अधिकारियों तक भी पहुंची और उन्होंने अपने मैसेंजर को, संदेशवाहक को भेज दिया कि अभी जाके उसको रोको। और एक संदेशवाहक गाड़ी के अंदर आया और उन्होंने गांधी जी को एक स्लिप, एक मैसेज सर्व किया। गांधी जी ने उसको पढ़ा और चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठ के अपने घर तक आ गए। और वहां पे आके गांधी ने उस स्लिप के ऊपर साइन किए कि आई डू नॉट फॉलो दिस
ऑर्डर, क्योंकि उसके अंदर लिखा था आप चुपचाप इस एरिया को छोड़ के चले जाइए। तो अब गांधी जी ने लिख के उसको दे दिया, वो वहां पे गया और वहां पे जाने के बाद अंजाम होता ही है कि जब आप बॉस को, क्योंकि उस टाइम पे हम अंग्रेजों के गुलाम थे, वो हमारे बॉस थे, बॉस को मना करते हैं तो उसकी मर्जी होती है, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ FIR लॉन्च करवाई और गांधी को अगले दिन कोर्ट में के हाजिर होने के लिए समन भेज दिया। अब गांधी जी जब कोर्ट जा रहे थे तो उनको भी लगा भैया प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात भी जंगल की आग की भांति पूरे एरिया में फैल गई और वहां के किसान एकदम अपनी मर्जी से मोतिहारी कोर्ट के बाहर पहुंच गए। अब मोतिहारी कोर्ट के बाहर इतनी भीड़ देख के अंग्रेजों के पांव तले की जमीन निकल गई। देवर बैफल्ड, देवर परप्लेक्स, व्याकुल, बेचैन, दुखी थे। और जब उन्होंने उस भीड़ को कंट्रोल करना चाहा तो अंग्रेजों ने देखा उनके काबू की बात नहीं दी। अब यहाँ पे उन्होंने गांधी के सामने रिक्वेस्ट किया कि श्रीमान इसको हैंडल करने में आप हमारी मदद कीजिए, और गांधी ने उनको समझाया। और यहाँ पे गांधी ने अंग्रेजों को समझाया कि हिथरेटो यू आर थिंकिंग that you are the master, कि अब तक आप सोच रहे हैं कि आप मास्टर हैं, but today I am giving you the exact concrete proof that Indians can raise their voice against the atrocious nature of the Britishers। जो अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ एकदम से अत्याचारी व्यवहार रखते हैं, रवैया रखते हैं, उसके खिलाफ भारतीय आवाज उठाने में सक्षम। और आप इस भीड़ को देख सकते हैं। अब आप मास्टर नहीं रहे जो सोचते थे मेरे से ऊपर कोई नहीं है। और जब वहां पे एकदम इतनी भीड़ को देखी, उन्होंने अंदर मैसेज दिया तो उसकी प्रोसीडिंग शुरू हुई कोर्ट की। और वहां पे गांधी अंदर गए, उन्होंने गांधी से पूछा कि क्या है। गांधी जी ने वहां पे एक प्लीडिंग लेटर पढ़ा, एक स्टेटमेंट पढ़ी कि भाई मैं इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि मैंने कानून को तोड़ा, लेकिन मैं कानून को तोड़ के एक बुरा उदाहरण स्थापित नहीं करना चाहता था। यहाँ पे मैं एक दवंदव, एक ड्यूअल में फंस गया था। वो ड्यूअल कौन सा? एक तरफ तो मेरे लिए ये था कि मैं कानून को बनाए रखूं, दूसरी तरफ ये था कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन होने के नाते ह्यूमन की हेल्प करें। तो मैं यहाँ पे इंसानों की मदद करने आया हूँ, मेरे भाई बंधुओं की मदद करने आया हूँ। इसलिए वो मेरी जो सेल्फ कंसाइंस है, इंटरनल कंसाइंस है, अंतरात्मा है, उसने मुझे कहा कानून से ऊपर मेरे भाई बंधु हैं, मानवता सर्वोपरि है, इसलिए मैं इनकी मदद करने के लिए आया और यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब आपकी मर्जी, आप क्या कहेंगे। अब अंग्रेज अधिकारियों ने सोचा अगर हम गांधी को कोई भी सजा सुना देते हैं और बाहर के किसान अनकंट्रोल्ड हो गए तो हमारे को जान से मार देंगे। इसलिए उन्होंने अपने जो हायर अथॉरिटीज है, उनके भी बॉस थे, उनसे डिस्कस करने के लिए सोचा और गांधी को कहा कि भाई कोर्ट इज एडजर्न फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए हम स्थगित करते हैं और अगर आपको फ्री रहना है तो 2 घंटे के लिए बेल जमा करो। गांधी ने कहा भाई देर तुम कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, बेल किस नाम की, चाहो तो अभी डिसीजन सुना सकते हो। तो ये बात सुन के अंग्रेज अधिकारियों ने उनको बिना बेल के ही फ्री कर दिया। और जब गांधी बाहर आया, बाहर आके गांधी ने वकीलों से पूछा कि मामला गड़बड़ा सकता है, अगर 1% वो लोग मुझे जेल में रोक दें तो तुम क्या करोगे। एक वकील जो उन्हें थोड़ा सा हम कह सकते हैं ना समझता, उसके पास सिर्फ बुकिश नॉलेज थी, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगी, तो उसने गांधी से कहा कि श्रीमान बात ऐसे है, हम तो आपको हेल्प करने के लिए आए थे, सजेशन देने के लिए आए थे, अगर आप जेल में चले गए तो हम क्या करेंगे, हम अपने अपने घर जाएंगे। तो ये बात कहते ही गांधी ने कहा मैं जेल में चला गया, तुम अपने घर चले गए, इन किसानों का क्या होगा, पेजेंट्स का क्या होगा जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये बात थोड़ी सी एक सटारिकल टोन में कही गई थी, जिसको राजेंद्र प्रसाद भली भांति भाप गए थे, जान गए थे, इसलिए वो वकीलों को अपने साथ ले गए और अपने साथ ले जाके उन्होंने उनसे सलाह मशविरा किया कि देखो ये आदमी इनको जानता तक नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं, हमारे स्टेट का नहीं, फिर भी इनके लिए जेल जाने को तैयार है। और हम अपने आप को ये कहते हैं कि हम इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, और हम इनसे फीस भी लेते हैं, कोर्ट में इनको केस भी लड़ते हैं, और फिर हम अपने घर जाएंगे तो ये हमारे पार्ट के ऊपर कितना एक हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा बात तो ठीक है, और उन्होंने एक सलाह मशविरा करके एक निश्चय में पहुंचे कि हम भी इस व्यक्ति के साथ जेल जाएंगे। वापिस आके उनका अफसोस, सबका डिसीजन, कंक्लूजन गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद ने सुनाया कि श्रीमान हम भी आपके साथ जेल जाने को तैयार हैं। तो यहाँ पे गांधी ने कहा हमने ये लड़ाई जीत ली है। आधी लड़ाई की तो यहीं पे कह दी थी, जब कोर्ट के बाहर इतने किसान अपनी मर्जी से आए थे तो गांधी ने कहा था शुरुआत हो चुकी है, वो चिंगारी भड़क चुकी है, क्योंकि वो किसान जो ओप्रेस था, दबा हुआ था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था, आज वो अपनी मर्जी से जब यहाँ पे आप खड़ा हुआ है बिना किसी के
एक्साइटमेंट के, प्रोवोकिंग के, तो वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे उसकी अंतरात्मा जाग गई है। तो वो ही लाइन है कि हमारे अंदर की जो बात है उसको दबाया जा सकता है, बुझाया नहीं जा सकता। इसीलिए वो किसान थे और इधर लॉयर्स थे। पावर हो गई है कि एक तरफ वो पावरफुल व्यक्ति हैं, अपनी बात पे जिद्दी हैं, हटी हैं, और दूसरी तरफ कानून के रखवाले हैं। तो दोनों मिलके अपनी लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। तो उस टाइम के कुछ टाइम के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने सलाह मशविरा करके गांधी को कहा कि श्रीमान बात ऐसे है, हम आपका जो डिसीजन है, केस है, उसको कुछ दिन बाद सुनाएंगे, इसलिए आप तब तक फ्री रह सकते हैं। तो गांधी फ्री रहे और उन अपने लोगों से डिस्कशन करते रहे और ये कहा कि भाई हम पहले एक अच्छी सी जानकारी जुटा लें कि हमने क्या क्या किया और इन अंग्रेज अधिकारियों ने क्या क्या खामियां की हैं। कुछ दिन बाद गांधी जी को एक लेटर मिला कि भाई आपको फ्री कर दिया गया है, मतलब जो आपका केस है वो हटा दिया गया, गलती हमारी थी, आपकी कोई गलती नहीं थी। और ये मैसेज एडवर्ड गेट के द्वारा उसको भेजा गया था। कुछ टाइम बाद एडवर्ड गेट से उसको एक फिर मैसेज आया कि हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। गांधी के मन में शक हुआ कि कहीं ये लोग मेरे को मीटिंग के बहाने बुला के अंदर खाते जेल में रोक दें और एकदम से लोगों को फिर से डराना धमकाना शुरू कर दें। इसलिए गांधी जी ने वहां जाने से पहले, मीटिंग में जाने से पहले एक बार फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे एमिनेंट जो प्रसिद्ध वकील थे उनके साथ सलाह मशविरा किया और वही चेन सिस्टम फॉलो किया कि 1% अगर मैं जेल में चला जाता हूं तो मेरे बाद इस टीम का मुखिया ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। ये चेन सिस्टम बना दिया कि अलग अलग लोग अपनी मर्जी से अरेस्ट करवाएंगे अपने आप को और इस प्रकार अंग्रेज मजबूर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जैसा गांधी ने सोचा था वैसा ना हो कि उसके कॉन्ट्रेरी हुआ, उसके विपरीत हुआ और लगातार 4 बड़ी बड़ी मीटिंग एडवर्ड गेट के साथ हुई और एडवर्ड गेट ने उनको एक आश्वासन दिया कि आप क्या चाहते हैं। गांधी जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि जस्टिस हो, न्याय हो। तो गांधी जी को उन्होंने कहा ठीक है, हम एक कमेटी का गठन करते हैं, उस कमेटी के अंदर जो पेजेंट्स हैं उनकी साइड से हम आपको लेंगे और कुछ अंग्रेज प्लांटर्स को लेंगे और कुछ गवर्नमेंट अधिकारी होंगे, जिसमें आपके बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन होगा उसको बैलेंस करने के लिए जो हमारे अधिकारी हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। गांधी जी ने उस बात को स्वीकार किया। वो जो इंक्वायरी जुटानी शुरू की तो पूरे के पूरे चंपारण के अंदर किसानों की बहुत ज्यादा हलचल बढ़ गई। वो इधर से उधर जा रहे हैं और 10,000 किसानों की जो समस्याएं थी, कंप्लेंट थी, उनको राइट डाउन किया गया, नोट डाउन किया गया और भी बहुत सारे सबूत जुटाए गए और उन सबूतों को जुटा के जब कोर्ट में पेश किया गया तो ब्रिटिश प्लांटर्स ने सरेंडर कर दिया और कहा कि यस वी आर गिल्टी, नाउ व्हाट यू वांट फ्रॉम आवर साइड, अब आपको क्या चाहिए। और उन्होंने सोचा था कि गांधी एकदम से ये कहेगा कि हमें तो 100% जो कंपनसेशन आपने लिया था वो वापस चाहिए, लेकिन उनके सरप्राइज के लिए गांधी ने कहा कि हमें 50% आप वापस दे दीजिए। एक अंग्रेज अधिकारी जो पूरे मामले को देख रहा था उसने सोचा था कि यहाँ पे गांधी 50% पे पूरा अडिग है और वो उनको और मौका नहीं देगा। लेकिन अंग्रेजों की तरफ से जो एक और व्यक्ति था उसने निवेदन किया कि श्रीमान हम तो 25% ही दे सकते हैं और गांधी टुक हिम ऑन हिज ओन वर्ड्स, गांधी ने उसके शब्दों पे ले लिया कि ठीक है कोई बात नहीं भाई, आप 25% ही दे दो। सब हैरान थे। बाहर आके शायद गांधी से जब किसी ने पूछा होगा कि आप 25 पे क्यों मान गए, वो तो आपको 100% भी दे सकते थे क्योंकि वो गिल्टी थे। तो गांधी ने कहा पैसा डजंट मैटर नहीं करता, मनी डजंट मैटर, जो थिंग मैटर करती है कि उनको इस पैसे के साथ अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भी सरेंडर करनी पड़ी है। जो आज तक अपने आप को ये मानते थे हम कानून के बाप हैं, हमारे से ऊपर कोई नहीं है, वी आर द बेस्ट, वी आर ऑन द पीक, वी आर ऑन द अपेक्स, हम सर्वोपरि हैं, हमारे खिलाफ कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। तो आज उनको पता चल गया था कि उनके खिलाफ भी कानून है और उनके खिलाफ क्वेश्चन उठा सकता है, जिस वजह से अब वो लोग अंदर से टूट गए हैं। और यहाँ पे जो इंडियन पेजेंट्स थे उनको ये एहसास हुआ कि हाँ कोई हमारी आवाज उठाने वाला है और हम भी बरी हैं। कुछ दिनों बाद वो ब्रिटिश प्लांटर्स उस जमीन को छोड़ के वहां से चले गए और वो सारी के सारी जमीन भारतीयों के खाते में आ गई, उनके पास आ गई। अब यहाँ पे जो चंपारण एपिसोड था, जिस काम के लिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी को बुलाया था वो काम तो पूरा हो गया, लेकिन गांधी के अंदर सैचुरेशन नहीं आता था, वो इस बात से सेटिस्फाई नहीं थे। गांधी जी ने इतने दिन रहते हुए वहां पे एक और बात देखी थी कि वहां का सोशल और इकोनॉमिक और कल्चरल जो पार्ट है वो भी काफी वीक है, क्योंकि वहां के लोग इलिटरेट हैं,
पुअर हैं, एक्सप्लॉइटेड हैं, इसलिए उन लोगों का कैसे अपलिफ्टमेंट हो। गांधी ने अपने डिसिपल्स को, फॉलोअर्स को रिक्वेस्ट किया कि कौन कौन आ सकता है। नरहरि पारिख जैसे व्यक्ति वहां पे आए और उनकी रिक्वेस्ट पे जब वो व्यक्ति वहां आए तो 6 स्कूल अलग अलग क्षेत्र के अंदर खोले गए, 6 विलेजेस के अंदर, और उन्होंने पढ़ाने का काम शुरू किया। फिर गांधी जी ने साफ सफाई पे ध्यान दिया कि क्लीनलीनेस, जैसे कि कहा गया है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, भगवान के बाद सफाई का ही है, क्योंकि सफाई के अंदर ही भगवान का विराजमान होते हैं, निवास होता है, और कहीं पे वो नहीं जा सकते। इसलिए गांधी जी ने अपनी वाइफ को भी, कस्तूरबाई को भी और बेटे को भी बुला लिया था और उनसे भी हेल्प ली और अपनी वाइफ को लेडीज की हेड बना दिया। अब जब लेडीज को उनकी वाइफ ने कहा कि आप साफ सफाई क्यों नहीं रखते, तो गांधी जी की वाइफ कस्तूरबाई उनके साथ गई और चेक किया तो एक लेडी अपने साथ उनको लेके गई और दिखाया कि हमारे घर में ना तो कोई कपबोर्ड है, अलमीरा है। दूसरी बार हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास यही कपड़े हैं, यही पहन लेते हैं, इनको धो लेते हैं, कुछ टाइम के बाद एक एक ड्रेस एक्सचेंज कर लेते हैं, तो हम कहां से इन चीजों को रखें। फिर गांधी जी ने कुछ डॉक्टर्स को भी आह्वान किया कि आप अपनी मर्जी से वॉलंटियर बन के आप आइए और लोगों की मदद कीजिए। तो उन मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी कुछ डॉक्टर आए और वहां पे सिर्फ 3 ही चीजें उन लोगों को अवेलेबल थी। कौन कौन सी? कास्टर ऑयल, कुनीन और सल्फर ऑइंटमेंट। लोगों की अलग अलग बीमारी देख के उसके हिसाब से वो डॉक्टर्स उनको वो चीजें दे देते थे। अब उसके बाद सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता कैसे आया कि भी क्या चीज कैसे होनी चाहिए। जब गांधी जी ने उस सारे काम को अंजाम दे दिया और वहीं से वो नजर अपने आश्रम पे भी रखे हुए थे, लोगों को साफ सफाई का पाठ पढ़ा रहे थे कि जो ओल्ड ट्रेंचेज ऑफ लेट्रिन है उनको बंद कर दीजिए और नए खोद लीजिए, क्योंकि बारिश का मौसम है जिस वजह से वो स्टिंकी स्मेल वहां से एमिट होगी, दुर्गंध आएगी। उसी टाइम पे जब ये हुआ कि काम कंप्लीट हो गया है और मैं चंपारण को छोड़ के जाऊंगा, तो वो वकील गांधी के पास आए और उन्होंने गांधी से बताया कि एक अंग्रेज अधिकारी आपका डिसिपल बन गया, फॉलोवर बन गया है, जिसका नाम क्या है? CF एंड्रूज, चार्ल्स फरियर एंड्रूज। उसको अगर हम अपने साथ मिला ले तो हम पावरफुल हो जाएंगे। गांधी ने कहा कि बात ठीक है, आप उसको मिलाना चाहते हो, पावरफुल हो जाओगे, लेकिन वो एक अंग्रेज अधिकारी है। आप अपने ऊपर भरोसा ना करके उस पर भरोसा करोगे जो हमारे को गुलाम बनाए हैं। आप अपने अंदर के इंसान को जगाइए, तभी जाके आप उनको हरा सकते हैं। और राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने हमारे मन के सवालों को पढ़ लिया था, इसलिए उन्होंने हमारे को सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार इस लेसन से हमारे को ये सिखाया है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि वो जो एक कहावत बनी है कि कौन कहता है आसमानों को झुकाया नहीं जा सकता, कौन कहता है सपनों के महलों को बनाया नहीं जा सकता। आसमान भी झुकेगा, महल भी बनेंगे, पर मेरे दोस्त पहले तेरे को अपने अंदर का इंसान जगाना होगा। थैंक यू।